آج یہاں پہ وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے انسٹرکشن پہ پشاور ایئرپورٹ یہاں پہ ہم نے انتظامات چیک کیے. یہاں پہ میرے ساتھ عباسی صاحب جنرل منیجر اور عمران. یہاں پہ جو ابھی تک صورتحال ہے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن میں سب سے پہلے جو کراچی طیارہ حادثہ ہوا ہے اس حوالے سے بہت دلخراش واقعہ ہے. اس حوالے سے ہم ان شہداء کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ان کے درجات بلند کرے اور ان کی جو فیملیز ہے ان کو صبر و جمیل عطا کرے. اور انشاءاللہ جو کمیشن بنا ہے اس کا پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو انسٹرکشن دیے ہیں انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی آئے گا. وہ پہلے کمیشنوں کی طرح سرد خانے میں نہیں پڑا ہوگا. انشاءاللہ تعالی جو حقائق اس طیارہ حادثہ کی جو رپورٹ ہوگی وہ پبلک کی جائے گی اور سب کے سامنے رکھی جائے گی. اس حوالے سے میں آج آپ کے سامنے دو تین چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں جو مین ایک تو ہمارے زائرین تھے جو وہاں تفتان سے آئے، وہ پھر ان کو ہم نے کوارنٹائن کیا ڈی اے خان اور یہاں پشاور دوران پور میں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اپنے گھروں کو جا چکے ہیں. پھر طورخم بارڈر پہ جو ہمارے پاکستانی بھائی تھے جو افغانستان میں پھنسے ہوئے تھے کافی عرصے سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی تقریباً آئے ہیں، مکمل ہیں، جو رہتے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. اس کے لیے پورا میکنزم وہاں طورخم سے جب وہ آتے تھے تو ہم نے خیبر ڈسٹرکٹ میں ان کے لیے کوارنٹائن سنٹر 7 کوارنٹائن سنٹر ہم نے قائم کیے تھے. وہاں پہ باقاعدہ ان کے ٹیسٹ ہوتے تھے. اس کے بعد وہ جن کو نیگیٹو آ جاتا وہ اپنے گھروں کو جاتے تھے اور جن کو پازیٹیو ہوتا تھا پھر پروسیس ان کا شروع ہو جاتا تھا. جن کے علامات ہوتے تھے ان کا پھر آئسولیشن سنٹر یا اس سے زیادہ پھر آئی سی یو، یہ سلسلہ وہاں سے بھی. اور پھر اس صوبے میں ڈیفینیٹلی پشاور ایئرپورٹ بڑا ایئرپورٹ ہے اور ہمارا جو مین ایئرپورٹ ہے. یہاں پہ اگر میں آپ لوگوں کے سامنے فگر شیئر کروں تو جو 1 فروری 20 مارچ تک جو اس وقت جو ریگولر فلائٹ آ رہے تھے اس میں کل جو پروازیں ہیں وہ 478 آئے ہیں، اور اس ریگولر جو 20 مارچ تک تھے اس میں 81,524 اس ایئرپورٹ کے ذریعے ہمارے جو پاکستانی ہیں جو باہر سے آئے ہیں ان کا بھی باقاعدہ اس وقت جو ایس او پیز تھے جو اس وقت کے تھے پشاور ایئرپورٹ میں اس ایس او پیز کو مکمل طور پر فالو کیا گیا اور وہ سکریننگ وہ سارا جو سلسلہ وہ ہوا. اور پھر اس کے بعد جیسے آپ کو معلوم ہے کہ فلائٹس بند ہوئی. اس کے بعد 15 اپریل سے جو ہمارے 15 اپریل سے جو 28 مئی تک جو فلائٹس ہے جو 15 اپریل سے پھر شروع ہوئے. ٹوٹل جو اسپیشل جو فلائٹس ہے کرونا کے جو وبا کی جو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں 23 خصوصی پروازیں یہاں پہ اس ایئرپورٹ پشاور ایئرپورٹ کے ذریعے آئے ہیں. اس میں ٹوٹل جو مسافر ہے وہ 4,675 مسافر آئے ہیں، جس میں کرونا پازیٹیو جو ہے وہ 727 آئے ہیں. 481 کا جو تعلق ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہیں اور 246 جو ہے وہ ادر پروونس کے ہیں. اس طریقے سے جو زیادہ تر ہمارے جو یہ 23 فلائٹ آئے ہیں اس میں 21 فلائٹ گلف اسٹیٹ سے آئے ہیں، 1 فلائٹ سوڈان خرطوم سے اور 1 فلائٹ ملیشیا سے آیا ہے. تو اس حوالے سے
यहाँ पे हमारे खैबर पख्तूनख्वा की हेल्थ डिपार्टमेंट के 55 जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे लोग तैनात हैं। उसमें 16 डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ और तिबी अमला यहाँ पे मौजूद रहा इस पूरे उसमें। और फिर सिविल एविएशन के भी अपने जो डॉक्टर थे उससे मिलाकर पैरामेडिक स्टाफ के 10 लोग वो थे। इस मौके पे मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पेशावर एयरपोर्ट के तमाम अमले को। यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने मैनेज किया है। यहाँ पे जितना बोझ इस एयरपोर्ट पे है और जिस तरीके से मैंने देखा जब यहाँ से लोग बाहर से भी आते उनकी भी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो रही है। और यहाँ पे जो सिर्फ इनका अपना स्टाफ है मेरे ख्याल में कि 1800 है। जी सर, स्टाफ ज़्यादा है लेकिन 1800 डेली की 1800 डेली की जो है ना वो तो उनकी भी स्क्रीनिंग हो रही है। और ये भी और फिर ये कि ज़ाहिर है इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल है उसमें कहीं पे भी जो मैंने SOP चेक किए और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जब फ्लाइट यहाँ पे पहुँचता है उससे पहले उसके लिए पूरे इंतज़ामात किए जाते हैं। और उसमें जब पैसेंजर आते हैं उनको कोई भी मास्क के बगैर पैसेंजर एक तो जो है अलाउड नहीं है। और फिर इस तरीके से उन लोगों को प्रॉपर यहाँ पे बिठाकर गाइडलाइन दिया जाता है। बाकायदा पम्फलेट मैंने देखे बड़े अच्छे हिफाज थी। और फिर ये भी चेक किया जाता है फ़्लाइट के अंदर कि जो हेल्थ कार्ड है वो भी उनके पास मौजूद है। और फिर साथ साथ उनको फिर उनके जो लगेज है जो उनके जो सामान है उनको भी डिसइंफेक्ट किया जाता है। तो पूरा जो SOPs है वो पेशावर एयरपोर्ट में पूरा हो रहा है, उस पर मुकम्मल अमल दरामद हो रहा है इंशाअल्लाह ताला। ये जो अभी जो इस हवाले से जो इंतज़ामात वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब ने जो मुझे इंस्ट्रक्शन दिए थे मैंने यहाँ पे चेक किए, उसका भी एक ये है कि हमारे वो पाकिस्तानी भाई जो गल्फ़ स्टेट्स में हैं या दूसरे ममालिक में हैं, ख़ुसूसन गल्फ़ स्टेट की मैं बात करूँगा, उनकी तकालीफ उनके मुश्किलें वो भी हमारे सामने। ये उनका अपना मुल्क है, ये उनका अपना सूबा है। और इस हवाले से वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब ने प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब से ख़ुसूसी तौर पे मुलाकात भी की, जो हमारी सऊदिया और जो UAE और दूसरे जो हमारे वहाँ पे लोग हैं उनके हवाले से बात की, उनके मुश्किलात और उनके जो वो है उनको सामने मद्देनज़र रखते हुए अभी जो आगे हमने फ़ैसले करने हैं कि इस एयरपोर्ट पे ज़ाहिर है आगे और भी बोझ बढ़ेगा। उसकी वजह यह है कि हमारे जो वो भाई है उनको हमने ज़ाहिर है उनको हम बाहर तो इस मौके पे नहीं छोड़ सकते, उनको हमने लाना है। लेकिन उसके लिए भी हमने SOPs और वो जो तरीक़ेकार है उस पर मुकम्मल अमल दरामद इंशाअल्लाह होगा। और हमारी पूरी ये कोशिश है हमारी हुकूमत की और एयरपोर्ट इंतज़ामिया की कि हमने अपने जो इस वक्त सूरत हाल है कोरोना वबा के, जैसे आपको मालूम है उसमें एहतियाती तदाबीर बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसमें जहाँ पे हम बाज़ारों में खुद जाते हैं, फ्रंट लाइन पे खुद जाते हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं, उसी का तसलसल है आज पेशावर एयरपोर्ट का विज़िट करना कि यहाँ पे ज़ाहिर है जो एक तो ये है कि एक इज़हार यकजहती भी करनी है सूबाई हुकूमत पेशावर एयरपोर्ट का जितना भी अमला है उनके साथ कि सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब की क़यादत में उन्होंने मुझे ख़ुसूसी तौर पर ये मैसेज भी दिया है कि मुकम्मल तौर पर आप लोगों के बैक पे है, आप लोगों के साथ खड़ी है शाना बशाना। जो इस चीज़ की एयरपोर्ट के अमले को यहाँ पे ज़रूरियात हैं या जो भी है वो मैंने डिस्कस किया वो भी इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से पूरे करेंगे। हमारा मकसद इस वक्त ये है कि कोरोना वबा को हमने शिकस्त देना है। और दो चीज़ें जो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन को हमने फॉलो करना है कि हमने जो हमारे कारोबारी हजरात है, जो हमारे ट्रेडर्स है, चाहे वो हमारा एयरपोर्ट हो, चाहे वो हमारा तोरखम बॉर्डर हो, चाहे हमारा बाज़ार हो, चाहे हमारा हॉस्पिटल हो, उसमें हमने ये कोशिश करना है कि इस वक्त इस वबा के
जो वाहिद हल है इससे अपने अवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो एहतियात है और वो एहतियाती तदाबीर है जिस पे हमने अमल दरामद करना है। तो इसीलिए इसमें ज़िम्मेदारी बनती है तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों को कि वो एक तो अवेयरनेस अवाम तक पहुंचाए ताकि कारोबार भी रवा दवा हो, SOPs जो हुकूमत ने वाज़े किए उसके मुताबिक उसमें रहकर, और दूसरी तरफ हम इस कोरोना वबा से अपनी आवाम की तहफ़्फ़ुज़ कर सके। तो इस वक्त मैं यही आखिर में गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि मुश्किल वक्त है, लेकिन मुश्किल वक्त में हमने इस मुश्किल वक्त का डट कर मुकाबला करना है। और मुकाबला जो है इस वक्त वो हमने एक ऐसी जंग हम लड़ रहे हैं जो उसके लिए जो पूरी दुनिया में ग्लोबली जो वज़ा करदा SOPs है या जो एहतियाती तदाबीर है वो बहुत आसान है, उसका कोई जो है ना वो नहीं है। अगर हम समाजी दूरी और हम उन एहतियाती तदाबीर पे अमल करें जो हुकूमत ने वज़ा करदा है या जो हमारे डॉक्टर्स, हमारी जो हेल्थ सर्विस की जो कम्युनिटी है, इस वक्त आप ये भी ज़रूर देखें कि हमारा सूबा या ओवरऑल मैं पूरी मुल्क की बात करूंगा, डेफिनेटली हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जितना है उसके मुताबिक हमने आगे इस वबा का मुकाबला करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैबर पख्तूनख्वा की हेल्थ केयर सिस्टम अपने डॉक्टर्स जो हमारे हीरोज़ हैं, जो डॉक्टर्स ने जो शहादतें दे रही है और फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं इस वक्त, और पैरामेडिक स्टाफ और फिर तिबी अमला, मैं आज दोबारा और बार बार उनको सलूट पेश करता हूं कि इस मुश्किल वक्त में वो अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। वहीं पे फिर अवाम का और हम सब की ये ड्यूटी है, ये जिम्मेदारी है कि हमने ओवरबर्डन नहीं करना हॉस्पिटल्स को, अपने डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, तिबी अमले पे इतना बोझ नहीं डालना कि वो ओवरबर्डन हो जाए। तो इसलिए हमने एहतियात करना है और एहतियाती तदाबीर और SOPs पे अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला इसमें हमारी कौम में हमेशा की तरह जो मैं कहता हूं कि हमारी कौम में जान है, हमारी कौम में करंट है, हमारी कौम में जज्बा है। इंशाअल्लाह ताला हमने इस जो वबा को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के क़यादत में और अपने सूबे के वज़ीर आला महमूद खान साहब के इंस्ट्रक्शन पे इंशाअल्लाह हम इसको शिकस्त देंगे। थैंक यू वेरी मच।